Okay, so guys, thanks a lot. I'm not going to give you a lot of this thing. I have 30 minutes more और ऑलरेडी आप लोग 1 घंटे से सुन रहे हो. आई थिंक नीट के आजू बाजू की सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की सारी चीजें बात कर रहे हैं. अब जो मेरे को आधा घंटा है उसमें मैं आपको बोलूंगा आज की तारीख में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. I am habituated with, I take on a daily basis almost 2.5 hours of lectures, but I'm going to, ये जो आज मैं present करने वाला हूँ, वो 2.5 घंटे का compact है और सिर्फ आधे घंटे में वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा सभी बच्चों को, ठीक है. So Moksh is one of the organization in India which is there for 8 years, and I'm really happy to address such a large gathering of the students who have appeared for NEET. We are present in 35 cities. Okay, this is the largest organization serving students who are aspiring to become doctor today. We have 3 different divisions. Okay, and one is focused on placing students, counseling them, advising them, telling them honestly what exactly is the actual situation, showing them the ways. This is all about online coaching. When students are going abroad, we prepare them for license exam, and this is about placing 18-year-old students for travels and short-term programs. So Moksh is divided into three parts right now. We are going to talk majorly about options to become a doctor. Let's get connected, all of you. Let me switch on the video because this is one of the easiest way that we can. Okay, here I am. So this is NEET 2020 and guys, qualify is 147 जनरल के लिए एंड 113 फॉर द रिजर्व कैटेगरी. आपके पास 3 ऑप्शन है. मैं बहुत फास्ट जाऊंगा. अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन डाल देना. लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है इसीलिए, ठीक है. सिर्फ एक सवाल मत पूछना, सर इतना मार्क्स है मैं कहाँ जा सकता हूँ. उसका मैंने आपको सोल्यूशन दिया. इतना बड़ा गैदरिंग में एक एक स्टूडेंट को एड्रेस करना कस्टमाइज वे में, इसलिए नेक्स्ट वीक जूम कॉल पे हम लोग लेंगे. 500 से ऊपर वाला है उनको अलग लेंगे, 400 से ऊपर वाले हैं, 400 से 500 वाले उसका वेडनेसडे को लेंगे. 100% एक एक स्टूडेंट को हम लोग एडवाइस देंगे. प्रेफरेंशियल फॉर्म का दिन आएगा, उसके पहले आपको मिल जाएगा. So guys, let's see what are your options right now which are available. There are 3 options at the moment. One is India option. मेरे हिसाब से most of the states will have cutoff which is far more than 580, but I'm just writing 580 because I want to sure that everybody keep hope. They are on the borderline to keep hope. Those students, there is another lot of students who will be in qualified range 147 to 580 or reserved range of 100 to 500. Okay? And there are will be having less than 147 in open or less than 113 in reserved. So guys, these are the 3 different type of students जो अभी सुन रहे हैं. इसमें भी लॉट में 3. आप कहाँ ना कहाँ बैठोगे. सबसे पहला, इनको तो पता ही है कि उनको इंडिया में मिलेगा. अब सवाल यही है कि कहाँ मिलेगा, कहाँ चाहिए और कैसे करूंगा. मेरा एक ही चीज बताना है सभी बच्चों को. अगर आप के ऊपर गया है तो आपका है रिसर्च करने का. एक और 2, मुझे पीजी कहाँ करना है, इंडिया अब यूएस या जर्मनी. 98% ऑफ द स्टूडेंट्स डू इट इन इंडिया, यूएस और जर्मनी. तो आपका भी वक्त एक आएगा जब आपको पहले साल से आपको सीखना है. या तो आप नेक्स्ट के लिए तैयारी करोगे या यूएसएमएलई के लिए या एफएसपी के लिए. तो ये जो डिसीजन है ये भी आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप इंडिया में हो, अब्रॉड में हो या वो में हो. सो फाइनल डेस्टिनेशन अपनी जो जर्नी है वो पीजी की है. बीच में एमबीबीएस आ जाता है. इट इज जस्ट अ स्टॉप ओवर, बट फाइनली हमको यहाँ तक जाना है. यहाँ जाने का, पीजी में एंट्री मारना है. फॉर दैट यू विल नीड 5.5 years of studies in a super duper manner. So you actually prepared for the license examinations which are there for any that decided for. So guys, let's move forward. First option is for students who are getting in India, Indian government colleges. Those who are in between, please understand आपके पास 2 ऑप्शन है. एक है इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, और दूसरा है एमबीबीएस अब्रॉड जो क्वालिफाइड है. ऑफ कोर्स आप अनक्वालिफाइड हो तो भी फॉरेन में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको मई 2021 में क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है. दैट इज द कंडीशन. बट इन जनरल
most of the students who are going there are qualified. 98% of students are going there, they are qualified. Okay, 2% of students are taking this thing that even if they are not qualified, they are still going, and they will qualify back in May 2021. Okay, there are third type of students unqualified who have not crossed this range. They have an option of MBBS. This is called a combo. You learn NMAT examination in India. We will give you that, and you ultimately become a doctor. Or second option, as I told you, is MBBS abroad, but you have to come back in 2021. Now, individually, all the students must understand where you stand. I hope everybody is knowing the change in rules NMC Bill 2019. ये सबको पता है NMC बिल के बारे में जो चेंज आया है? इज एवरीबडी नोइंग दिस चेंज? आधे लोगों को नहीं पता है। चलो मैं फटाफट बता देता हूँ। मेडिकल काउंसिल को एनएमसी ने टेक ओवर कर लिया है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने। रेगुलेटर आपका बदल गया है, ठीक है। एनएमसी बिल फॉर डॉक्टर्स, ये कोई भी डॉक्टर बनता है आज की तारीख में, उसके लिए चाहे आप इंडिया में बनो, अब्रॉड में बनो, कॉम्बो में बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको नया रूल को एडेप्ट करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसी हिसाब से आप आगे का प्लानिंग करना है आपको। गाइस, key provision of the bill aims to bring uniformity in medical education standards in India. फाइनल ईयर एमबीबीएस की एग्जाम होगी कॉमन। जैसे आपकी एंट्रेंस एग्जाम हुई नीट, वैसे ही फाइनल ईयर की एग्जाम होगी नेक्स्ट। So we have a common final year MBBS examination which has been introduced for all the students, whether you are in India, whether you are going to study in abroad, or you are going to study in combo. Okay, combo something like आधा प्रोग्राम इंडिया में है, आधा अब्रॉड में है, ठीक है ना। So guys, जब तक आपका डेस्टिनेशन पीजी है, इसका मतलब है एंट्रेंस ऑफ पीजी का एग्जाम भी नेक्स्ट है, और बेसिक प्रैक्टिस करने का लाइसेंस जो चाहिए वो भी नेक्स्ट से आएगा। चाहे आप फॉरेंसिक बनो, चाहे कॉम्बो में बनो, चाहे इंडिया में बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी स्टूडेंट टू फॉलो न्यू रूल वेयर इन दिस बिकम्स द हार्ट ऑफ द सिस्टम। अंकित सर ने भी बताया, लाइसेंस एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन मेक श्योर। इंडिया अब्रॉड कॉम्बो, गवर्नमेंट से हो, एम्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लाइसेंस एग्जाम का तैयारी करना पड़ता है। अब इस लाइसेंस एग्जामिनेशन से आपको प्रैक्टिस करने का हक मिलता है। आप पेशेंट को हाथ लगा सकते हो, आप डायग्नोस कर सकते हो, आप दवाई दे सकते हो, लिख प्रिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बिना आपका कुछ भी मतलब नहीं है, आप डॉक्टर नहीं हो अगर लाइसेंस नहीं है तो। आपको यहाँ पे पीजी तक बनना है तो इसी एग्जाम के मेरिट में आना है। नीट पीजी अभी खत्म, रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट। एफएमजी जो फॉरेन से आने वाले थे वो खत्म, रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट। इंडिया वालों को जिसको नहीं था वो अभी नया इंट्रोडक्शन आ गया है नेक्स्ट का। So guys, things have changed in 2019. 2020 will be the first time where NMC will operate. They will become the regulator. NMC bill will be implemented, and all of you will go through a license exam whenever you become a doctor. So आज की तारीख में सेम सिस्टम दुनिया भर में है, चाहे आप इंडिया में करो, चाहे आप यूएस में करो, चाहे आप जर्मनी में करो। ओके, अब जो आपको समझाऊंगा मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ लेना कि जब तक मेरी जर्नी का एंड रिजल्ट मुझे नहीं पता, कहाँ रहना है, मुझे इंडिया में रहना है, यूएस में रहना है, या जर्मनी में रहना है, ठीक है। ये डेस्टिनेशन एमबीबीएस बीच में आता है, आपको ये भी तय करना है। आपको सभी को, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, हमको प्लानिंग कहाँ तक करनी है? आपको पीजी तक करनी है या एमबीबीएस तक करनी है? पहले वो बताओ। आपको स्पेशलिस्ट बनना है या आपको सिर्फ जनरल प्रैक्टिशनर बनना है? आपको कार्डियो बनना है, आपको न्यूरो बनना है, आपको सर्जन बनना है, आपको ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है, आपको एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, गायनेक,
या आपको एमबीबीएस बन के एक छोटी सी दुकान खोल के बैठना है? बताओ। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको करियर चाहिए, तो पीजी का प्लानिंग पहले से करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम जो है, जो आपको एमबीबीएस के अंदर सिखाया जाएगा वही 19 सब्जेक्ट के ऊपर आपकी एग्जाम है। गाइस, जब तक आप इसको नहीं देखो, आप 88% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट आई वांट करियर राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। See, I'll tell you, you will remember Moksh because we have guided you when you are in 12th. अभी आपके करियर की शुरुआत हो रही है, आपकी जर्नी शुरुआत हो रही है। कई लोगों की ऐसी ब्रेक जर्नी होती है, इनको ये नहीं पता होता कि मुझे पहले साल से अपना चालू करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये नहीं पता होता उनको, तो यहाँ आके बहुत लेट हो चुके होते हैं। आपको आज की तारीख में कोई एडमिशन एजेंट के पास जाओगे, वो बोलेगा अरे बेटा 5 साल का बाद की एग्जाम के लिए अभी से क्यों तैयारी करना है? 1 मिनट के लिए आप भी बोलोगे हाँ यार, 5 साल के बाद की तैयारी से क्यों करनी है? पर भाई पहले साल में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी क्या आपको 5 साल बाद याद रहेगा? नहीं रहेगा। यू हैव टू कंटिन्यूअसली प्रिपेयर। और ये जो 19 सब्जेक्ट है ना, एक साथ में नहीं सीख पाओगे आप। 5 साल का खाना एक साथ में नहीं खा पाओगे, धीरे 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 ही खा सकते हो। सो जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है वो डिस्करेज करते हैं, और उसमें आधे से ज्यादा लोगों की करियर खराब होती है। चाहे आपको इंडिया में जाना हो, यूएस में जाना हो, जर्मनी में जाना हो, आपको पहले अपना डिसीजन लेना चाहिए और उस एग्जाम की तैयारी करना पहले दिन से चालू करना पड़ेगा। फर्स्ट डे ऑफ एमबीबीएस मोक्ष का 15 नवंबर से कोर्स चालू हो रहा है। नेक्स्ट का यूएसएमएलई का और एफएसपी का। एफएसपी को टाइम लगेगा, ये 15 नवंबर को नहीं होगा, इसकी जल्दी भी नहीं होती, बट ये दोनों कोर्सेज चालू हो जाएंगे। तो गाइस, आपको क्या तय करना है? पहला, मैं इंडिया में करूंगा, अब्रॉड में करूंगा, या कॉम्बो में करूंगा? अगर इंडिया में है तो कौन से कॉलेज में करूंगा और मेरा पीजी का डेस्टिनेशन क्या होगा? अब्रॉड में करूंगा तो कौन सी कंट्री में, यूनिवर्सिटी में, और पीजी का डेस्टिनेशन क्या होगा? और कॉम्बो में करूंगा तो क्या मेरे पास डायरेक्ट वहां पे फिलीपींस जाके करूं, या इंडिया में रहूं और फिर चालू करूं मेरा? तो ऐसे अलग अलग डिसीजंस आपको अगले 10 दिन 15 दिन में नहीं लोगे तो 2020 आपका खत्म। 2021 तक एक साल बिगाड़ोगे। और एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल एस्पिरेंट, आपके पास इतना सारा टाइम नहीं है कि भाई आप, क्योंकि 9-10 साल का जर्नी है पीजी तक का, उसमें एक साल यहीं पे ऐड करते जाओगे। कितने लोग तो 2-2 3-3 साल रिपीट करते रहते हैं, इनको आगे की नहीं पता है, उनको विजुअलाइजेशन नहीं है, उनको पर्सपेक्टिव नहीं है कि कहाँ तक मेरी जर्नी है। सो गाइज, अब डिसाइड करते हैं पीजी का, जहां अपना फाइनल डेस्टिनेशन है। आप अपने अपने मन में फाइनल करो। चीज कैसा है, इंडिया के अंदर लाइसेंस एग्जाम नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 के नाम पे आ रही है, आ गई है। यूएस के अंदर स्टेप 1 और 2 सी के और 2 सी एस, ऐसी 3 एग्जाम है। और जर्मनी के अंदर एफएसपी और केएसपी करके 2 एग्जाम है। यहाँ पे पीजी का रेशियो, इंडिया में हर 12 डॉक्टर में से एक डॉक्टर पीजी बनता है। यूएस में हर 2 डॉक्टर बनते हैं, उसमें से एक पीजी तक जाता है। जर्मनी में ऑलमोस्ट हर डॉक्टर पीजी तक जाता है, फिर भी इनफ डॉक्टर्स नहीं है वहां पे। इंडिया के अंदर क्योंकि लैंग्वेज इज अ बैरियर, भले पीजी तक जाना इजी है पर लैंग्वेज इज अ बैरियर। दैट इज वाई जर्मनी में कम डॉक्टर्स जाते हैं, फॉरेन से भी, इंडिया से भी कम डॉक्टर। यूएस में स्टेप 1 के अंदर 65,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, इंडिया में नीट पीजी के अंदर 1,60,000। कंपटीशन खतरनाक है इंडिया में, इसीलिए बहुत कम लोगों को सक्सेस मिलती है पीजी तक। फॉर्मेट क्या है, कंप्लीटली थियोरेटिकल नॉलेज एंड नॉट ऑन एप्लीकेशन एंड कंसेप्ट बेस्ड। ये जो नेक्स्ट आ रहा है, जैसे अंकित सर ने भी बताया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम आ रहा है, तो पेशेंट सेंटर्ड बनते जाएगा, पूरा थियोरी के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। स्टेप 1 इज एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन थियोरी, स्टेप 2 इज एन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। FSP is more towards medical terminology and KSP is practical knowledge. So guys, डिफरेंट चीजें हैं, अभी से सही तरीके से डिसाइड करो एमबीबीएस कहाँ, पीजी कहाँ, तो अपना पूरा करियर का 9 साल का प्लानिंग बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। इंडिया में 3 साल का पीजी है, यूएस में आपका 3 से 6 साल का, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्पेशलाइजेशन ब्रांच है। जब आप पीजी करते हो तभी आपको इंडिया में 4 से 5 लाख रुपया मिलता है स्टाइपेंड। जब यूएस में पीजी करते हो तो 40 से 50 लाख का स्टाइपेंड मिलता है।
24 साल की उम्र में 40 से 50 लाख का 45 लाख का स्टाइपेंड मिलेगा मैं आपको साल का. I think this is the best option, and for that students are being, everybody is preferring to learn this. हमने एक चीज तय किया है कि अगर बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है और ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है जहां पे यूएसएमएलई का हाईएस्ट पासिंग रेशियो है, वहां पे हम स्टूडेंट से एक भी रुपया कंसल्टेंसी का नहीं लेंगे जिसको यूएसएमएलई सीखना है. So guys, these are different things that you will get from Moksha: the right perspective, proper visualization, super career planning, फैंटास्टिक कोचिंग. और जिसको जिसको ये कोचिंग एक्सपीरियंस करनी है, फ्री में आराम से करते जाओ, घर में बैठ के टाइम पास कर रहे हो आप लोग, ठीक है. और जर्मनी में जो है वो 20 से 25 लाख का मिलेगा, बट लैंग्वेज सीखना एक सबसे बड़ा पुट ऑफ होता है डॉक्टर के लिए. सूटेबिलिटी, क्वालिफाइड नीट स्टूडेंट्स जो होते हैं, इधर है 200 प्लस. मतलब ये सूटेबिलिटी इसलिए किया है कि जिसको जिसको 200 से देखो 285 अराउंड 75 परसेंटाइल वाला लड़का है इस टाइम, ओके. 60 परसेंटाइल नीट में आया है जिसको, या 65 आया है, वो यूएसएमएलई दे सकता है. अगर आपको इससे भी कम है तो फिर आप इसमें चले जाना. जो क्वालिफाइड जस्ट हुआ है वो ये इसी में चला जाए. जो थोड़े बेटर मार्क है नीट में तो वो पीजी यूएसएमएलई करने लायक है. और जो अनक्वालिफाइड है, अरे जर्मनी के लिए है, वो तो सारे कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम. 1:1 का रेशियो है. स्टैंडर्ड सूटेबिलिटी मैंने डाला है ताकि आपको समझ में आए सक्सेस रेशियो क्या होता है, ठीक है. अब आते हैं, आई थिंक आई हैव गॉट ओनली 6 minutes लेफ्ट फॉर माई, एंड देन we will be joined by one of the vice dean of the one of the finest universities in Ukraine, where USMLE has been the most successful program run in collaboration with Moksha. दो टाइप के कंट्री होते हैं. मुझे ये सबसे पहले आप लोगों को पूछना है, क्या मैं जो बोल रहा हूँ इज इट मेकिंग सेंस? पीजी तक जाना जरूरी है, 88% ने बोला, पर क्या आप तैयारी करना चाहोगे? क्या आप पीजी की तैयारी एमबीबीएस के पहले दिन से करना चाहोगे, या आप भी आराम से देखेंगे? विल सी. नीट से मुश्किल से बाहर निकले हैं, अभी से क्यों आप भेज रहे हो हमको? प्रेशर नहीं है, रियलिटी है. मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा. जो बच्चे नहीं समझते उसकी हालत क्या हुई है, ठीक है. सो गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू गेट इनटू द थिंग्स व्हिच आर मच मोर रिलेवेंट विथ एवरीबॉडी. 93% सेज पीजी तैयारी करनी है सर, लाइसेंस के बिना मेरा थोड़ी लाइफ चलने वाला है. पीजी, चलो पीजी में नहीं भी मिला तो लाइसेंस तो चाहिए, एग्जाम तो देनी है. तो फिर मैं चाहे इंडिया में हूँ, अब्रॉड में हूँ, या मैं कॉम्बो में हूँ, लाइसेंस लेना एग्जाम का जरूरी है. दूसरा सवाल है, क्या आपको एडवांस कंट्री चाहिए या आपको अंडर डेवलप्ड कंट्री चाहिए? अब हम लोग फाइनल करेंगे अगले 5 मिनट में अपना फाइनल ऑप्शन. अगर हमको 147 से लेके 579 के बीच में है ओपन कैटेगरी के लिए, या 113 से 500 के बीच में है रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो हम अपना अब्रॉड वाला ऑप्शन असेस कर सकते हैं. अगर असेस करने में आपको मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको किस टाइप के कंट्री में असेस करना है, पहले ये डिसाइड करो. क्या मैं इंडिया में के लायक, अगर 580 प्लस है तो आप बोलो इंडिया में जाना है, नहीं तो फिर अब्रॉड या तो कॉम्बो. ये दो ऑप्शन रहते हैं, चौथा कोई ऑप्शन रहने वाला नहीं है. तो आप लोग पहले ये डिसाइड करो, आपको लगता है कि पेरेंट्स देंगे परमिशन अब्रॉड के लिए, तो आप बोलो मुझे अब्रॉड के लिए ठीक लग रहा है. आपको बहुत ही धीरे धीरे, आई एम टेकिंग यू टू अ फाइनल डेस्टिनेशन. आप अपनी करियर का प्लान कैसे कर सकते हो, यही सवाल पूछ के अपना फाइनल डिसीजन लेना है. इसलिए आई एम डूइंग द स्पून फीडिंग, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू टेक, यू डोंट हैव लॉन्ग टाइम टू टेक अ डिसीजन, ठीक है. यू हैव वेरी स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि नवंबर से सारे दुनिया में कोर्सेज चालू हो जाएंगे, फिर 1 साल बिगड़ेगा आपका, ठीक है. तो सोच समझ के इसका जवाब दो. किसको किसको कौन सा ठीक लग रहा है वो डिसाइड करो. आई डोंट थिंक एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग ऑन दिस. आई एम क्लोजिंग दिस. 62% says I am qualified in it, I am looking to go abroad. 6% says won't go abroad, choose combo of BSc plus NMAT, and 21% says I am going to repeat, sir. As you can see, okay, guys, underdeveloped country, आपको एजेंट्स, आपने सुना होगा
कई लोगों को एसएमएस आया होगा, चल भाई फिलीपींस चल, चल भाई नेपाल चलते हैं, जॉर्जिया चलते हैं, किर्गिस्तान, वीडियोस, एसएमएस। आप लोग बोलो, मैं किसी का नहीं सुनने वाला। आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, आप आराम से, एजेंट क्या बोलेगा, चीप है चला जा, यूरोप है चला जा, इंग्लिश है, इंडियन वेदर है, इंडियन खाना मिलेगा चला जा। आपको बताएगा नहीं वहां पे एंट्रेंस एग्जाम है। 2 साल बाद 10 लाख रुपया खर्चा करोगे, फिर एंट्रेंस एग्जाम दो, और फिर फेल हो गए तो इंडिया वापस आओ। मैं आपको आज सबका चिट्ठा खोल के दे रहा हूं मैं, ठीक है। वॉर हो रही है आर्मेनिया में, फिर भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, आर्मेनिया में एमबीबीएस करो। 50 लाख में प्राइवेट कॉलेज में फालतू, नेपाल में जो अभी तक डेवलप नहीं है, इंडिया काफी आगे है। सो यू हैव टू सिलेक्ट योर सेल्फ। अब limit yourself to a very few countries, otherwise don't go abroad. Okay, now if you have to select, there are some disadvantages. रशिया आज की तारीख में ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, अब एक आध 2 दिन बाकी हैं। जिसके पास पासपोर्ट हो वो कोशिश कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली देर आर हार्डली 5-6 यूनिवर्सिटीज विच टीच यू इन इंग्लिश, रेस्ट आर टीचिंग इन रशियन। इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर लिख के दिया है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न, जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं, फायदा भी है और प्रॉब्लम भी है। आप लोग सभी लोगों को बोलूंगा, अगर ये यूक्रेन है तो ईस्ट पार्ट में मत जाना। यहाँ पे खार्किव है, कराजिन है, दोनेस्क है, लुहांस्क है, ये सारे जगह पे वॉर जोन है। गूगल कर लेना, समझ में आ जाएगा। आई शो इट टू यू लेटर ऑन, बट राइट नाउ वी नीड टू मूव ऑन बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू शोकेस टू यू। ऑलमोस्ट माई हाफ एन आवर इज ओवर एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो क्विकली। Guys, relationship with India and China is very bad, but world ranked universities are present there. Population सबसे ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ऊपर है, सुपर पावर वाला कंट्री है। ये कोई बीट नहीं कर सकता इस चीज को चाइना में। Unfortunately, many people are going to go. Those who understand these things, a lot of people have started choosing China, but first preference is always going to be Ukraine, क्योंकि रशिया अभी खत्म हो चुका है। So guys, कैसे सिलेक्ट करोगे? पहला तो सिलेक्ट करना है, इंडिया में होगा, अब्रॉड में होगा या कॉम्बो। अब आपको वो सवाल का जवाब दे दिया। अगर आप अब्रॉड में हो तो हमारे बेसिक क्राइटेरिया हमको रखने हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और मिनिमम 80 से 100 साल का एक्सपीरियंस हो, और लाइसेंस एग्जाम का पासिंग रेशियो बढ़िया हो। तो मैं आपको एक सिंपल सा चीज बता देता हूं मैं। This is it is USMLE, and if it is Ukraine, it is in Poltava. Highest passing ratio is there. If it is FMG and next, you can think about other universities. If it is, if you want to go to Germany, you can think about Lviv. But maximum students today are going for USMLE because of the stipend that you get during your, अगर आप चाइना जाने रहो तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के पासिंग रेशियोज आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट आप कहाँ पे सेटल होना चाहते हो, उस हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटीज को फाइनल कर सकते हो। आई होप इट्स गेटिंग वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू guys. I can't keep our wise dean on hold anymore. I have a lot of things to tell you. You are in 12th, you have India abroad and combo as an option. Chirag ji is going to showcase to you this one, the license examination. Actual, he will showcase to you the whole thing, and then this is your PG. आपके सामने आपका 9 से 10 साल का पूरा साइकिल रेडी है। आप अभी यहाँ पे पार कर चुके हो, नीट क्वालिफाइड हो, आपका डिसीजन यहाँ पे होगा। वी विल सपोर्ट यू थ्रू आउट दिस एंटायर जर्नी, right up to PG in planning, including placing you in few of the topmost universities, which are government university with minimum 100 years of experience, whether it is abroad or this, and make sure that you pass through license examination. Guys, I'm not going to take much more. आपको एक बजटिंग करना बहुत जरूरी है। MBBS 20 to 25 lakhs is the budget. If it is you want to come back to India, it's going to be only 1.5 lakh rupees. If you have USMLE, then you need to have 5 lakhs. If it is FSP, you need to go to Germany and do it. That's why it's 15 lakhs. So this is how the budgets and finalize. You can do MBBS in Philippines in combo is going to be 12 to 15 lakhs only. So this is how it is. Chirag ji, I think most of the people would have understood the whole concept of our webinar today. You can select, guys, you can select based on your budget. Okay,
This is the question you answer yourself and you will get your university for sure in abroad. Which type of university would you like to go for? And you immediately know you need to go through World Institute of Mental Goals and you would know exactly which university you should choose for. You don't need an agent anymore. Okay, you need a career planner and you need to be very sure. 94% of the students are saying, sir, government university, 2% says private. You know who are these 2%, right? These are those agents who come on when they want to place you. This is where you come to know which university has performed, how much, how old it is, whether it is government or not. So this is where you can find every university in Ukraine and then you finalize. You see FMG is on server is on maintenance today. You can see it later on at 18 September, October 18th. You can see this website again. So you can check it out at that time. Okay.